Hello students, good morning. This is the continuation of the previous chapter, Unity in Diversity. So now open your textbook on page number 92. Different caste, religion, customs, culture, language, etc. are integrated in India. Since India has a diverse culture, it has been able to create a variety in culture. India has followed the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is a family. India, in true sense, spreads the feeling of religious tolerance and equality in the world. India is a secular country. Unity in diversity is a unique feature of Indian cultures. In our country, we see combination of various religion, caste, language, and festivals. People of India live a life of coexistence. Indian people have developed and conserved this unique diversity. तो भारत में विभिन्न जातियों, धर्मों, रीति रिवाजों, संस्कृतियों, भाषाओं आदि को इंटीग्रेटेड, एकीकृत, एक किया जाता है, जो कि भारत में विविध संस्कृति है। इसीलिए एक संस्कृति में विविधता पैदा करने में सक्षम है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है, इस सिद्धांत के पालन किया है। भारत सही में धार्मिक सहिष्णुता, दैट इज टॉलरेंस, और समानता की भावना फैलाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर। विविधता में एकता भारत की एक अनूठी विशेषता है। हमारे देश में हम विविध धर्मों, जातियों, भाषाओं और त्योहारों के संयोजन को देखते हैं। भारत के लोग स्व अस्तित्व का जीवन जीते हैं। भारतीय लोगों ने इस अद्वितीय विविधता का विकास, आरक्षण किया है, यानी कि कंजर्व्ड किया है, रिजर्व्ड किया है, बचा के रखा है। Efforts for diversity and equality. Various types of diversities are seen in our country. Discrimination is seen due to these diversities. Discrimination on the basis of rich, poor, male, female, literate, illiterate, urban, rural, and caste are seen in our country. In the ancient time, social structure was occupation based on Varna system. Due to this, many groups remained backward socially and economically. Hence, differences based on caste came into existence. Most of the literate people earn more, so their living standard is high. They maintain reputed status in the society. Differences based on literate and illiterate can also be seen. Most of the people in India are living in rural areas. Urban people are quite less as compared to rural people. Due to major difference in their living standard, differences have arisen among rural and urban people. तो हमारे देश में विविध प्रकार की विविधता देखी जाती है। इन डाइवर्सिटियों के कारण डिफरेंसेस, भेदभाव देखे जाते हैं। हमारे देश में अमीर गरीब, रिच और पुअर, पुरुष महिला, मेल फीमेल, साक्षर निरक्षर, लिटरेट इलिटरेट, शहर ग्रामीण, सिटी विलेज और जातियों यानी कास्ट के आधार पर भेदभाव देखा जाता है। प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में, सामाजिक संरचना व्यावसायिक आधारित वर्ण व्यवस्था थी। तो ऑक्यूपेशन वॉज बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम। इसके कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से बिछड़े रहे। इसमें मतभेद के कारण जातियाँ अस्तित्व में आई। ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग, साक्षर पढ़े लिखे लोग अधिक कमाते थे, इसीलिए उनका जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा था, जो समाज में प्रतिष्ठित दर्जा बनाए रखते थे। साक्षर और निरक्षर के आधार पर अंतर भी देखा जा सकता है। भारत में अधिकांश लोग ग्रामीण में क्षेत्रों में रहे हैं। ग्रामीण लोगों की तुलना में शहरी लोग काफ़ी कम है।
उनके जीवन स्तर में बड़े अंतर के कारण ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। Since right to equality is given in our constitution after independence, untouchability is removed. Now the right to equality is granted to everybody, so all the people get equal opportunity, justice and status. RTE has given the right to free and compulsory education to children, so everybody has got an opportunity of primary education. Government has enhanced the educational and infrastructure facilities like village roads, primary health center, electricity, drinking water, etc. for the community development. Equal opportunities are granted to women according to the constitutional provisions so that their honor and respect can be maintained. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का अधिकार दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया था। समानता का अधिकार सबको दिया गया है, इसीलिए सभी लोगों को समान अवसर न्याय का दर्जा प्राप्त है। आरटीई ने बच्चों को मुफ्त और कंपलसरी शिक्षा का अधिकार दिया, इसीलिए सभी को प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन का अवसर मिला है। सरकार ने सामुदायिक विकास के लिए शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे गांव की सड़कें, विलेज के रोड, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिजली, पीने का पानी, इन सब को बढ़ाया है। महिलाओं को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समान छूट दी गई है ताकि उनके मान सम्मान को बना के रखा जा सके। बिकॉज ऑफ गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, पीपल फॉलो देयर ओन रिलीजन, स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल. Discrimination is decreasing after independence. Some seats are kept reserved for the people of certain caste in the election of Gram Panchayat to Parliament. Same thing is considered in the matter of jobs also. Hostels, scholarships and schemes of financial assistance for the students are implemented so that all can get opportunity for the further development in social, economical, cultural and political field. तो अधिकार यानी राइट्स प्राप्त करने के कारण लोग अपने स्वयं के धर्म का पालन करते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, अपने स्वयं के त्यौहार का जश्न मनाते हैं। स्वतंत्रता के बाद जो डिफरेंसेस थे वो कम हो रहे हैं। ग्राम पंचायत से संसद तक के चुनावों में कुछ सीटों का कुछ जाति के लोगों के लिए आरक्षित रख दिया जाता है, रिजर्व्ड सीट्स। नौकरियों के मामले में भी यही बात मानी जाती है। हॉस्टल हो, स्कॉलरशिप और बच्चों की फाइनेंशियल हेल्प की भी योजनाओं को लागू किया जाता है ताकि सभी को सोशल यानी सामाजिक, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, कल्चरल सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे विकास के लिए मौका मिल सके। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड, वुमेन प्ले अ मेजर रोल एज अ रिसोर्स इन नेशनल डेवलपमेंट. Due to biological differences with a social and cultural viewpoint, there is a difference in the upbringing of girls and boys. So, we find difference in the development also. Today, majority of women remain engaged in cooking household chores and upbringing children. तो फैमिली मैटर्स, पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने में महिलाओं का महत्व नहीं है। लड़कियां स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आर्थिक अधिकारों से वंचित है। खेल, शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को समान रूप में
डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। तो न केवल भारत में पर पूरे विश्व में महिलाएं राष्ट्रीय विकास में एक संसाधन यानी कि रिसोर्स के रूप में प्रमुख भूमिका निभाती है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण सोशल और कल्चरल के साथ जैविक अंतर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण गर्ल्स और बॉयज़ में अंतर होता है। लड़की और लड़कों की परवरिश में भी अंतर होता है, इसीलिए हम उनके विकास में भी अंतर पाते हैं। आजकल अधिकांश महिलाएं घर के कामकाज में और बच्चों को लाने में ही लगी रहती हैं। वुमेन डोंट हैव इम्पोर्टेंस टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग फैमिली मैटर्स। गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल राइट्स। गर्ल्स आर नॉट गिवन equal opportunities in the field of sports education. They are deprived of moving freely and thinking independently. They are not even treated equally. Girls are victims of child marriages, parda system, dowry system, and other evil customs because of low literacy rate. Birth of boy is given preference, so girls become victims of female foeticide. Less number of female in various fields shows the discrimination between male and female clearly. With the rising level of education, this discrimination is gradually disappearing. तो पारिवारिक मामलों में निर्णयों लेने में महिलाओं का महत्व नहीं है। लड़कियां स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आर्थिक अधिकारों से वंचित हैं। खेल शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को समान रूप में अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। वो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने और सोचने से वंचित है। उनके साथ समान व्यवहार भी नहीं किया जाता। कम साक्षरता दर के कारण लड़कियां का बाल विवाह, पर्दा सिस्टम, दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा और अन्य कुरिवाजों, इविल कस्टम्स का शिकार लड़कियां होती हैं। लड़के के जन्म को प्राथमिकता दी जाती है और लड़कियां कन्या भ्रूण हत्या का शिकार हो रही है, फीमेल फोर्टिसाइड, कि जब लड़की पैदा होती है तो वो उन्हें मार डालते हैं। विविध क्षेत्रों में महिलाओं की कम संख्या और पुरुषों और महिलाओं के बीच के भेदभाव को एकदम स्पष्ट रूप से दर्शाती है। शिक्षा के बढ़ने के स्तर के साथ ये भेदभाव भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, डिसअपियरिंग, गायब हो रहे हैं। So students, here we have completed this chapter. For homework, you have to write the answers of objectives, that is MCQ, blanks, true or false, and match the column.